सर सर ये जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन किया गया है, इससे क्या आप सहमत हो कि ये ठीक हो रहा है या नहीं? फिलहाल तो बैन होना ही चाहिए जिस तरह की स्थिति है। जब स्थिति बेहतर हो जाएगी तो हम भी अपने बाहें फैला लेंगे। आप क्या बोलना चाहते हैं अली सर? थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। छोटा सा सवाल इस सब से अलग कि हाल ही में पुलवामा में जो हमला हुआ है, जो 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए हैं, उसके बाद जो युद्ध उन्माद का माहौल, वॉर मॉन्गरिंग का जो दौर चल रहा है देश में कि मार दो, ख़त्म कर दो, इसके बारे में आप लोग क्या कुछ राय रखते हैं? अगर कुछ अली, सिकंदर और तिग्मांशु सर आप लोग बता पाएँ। आप Tigmanshu, simple question. The film industry has come together, united, and they have decided that films will not be released in Pakistan. Pakistan will be excluded as the foreign market. Your take on the same, and will Milan Talkies be releasing in Pakistan? No, it will not be released in Pakistan. For two reasons. First, this, like you're saying, we stand in solidarity. And दूसरी चीज़, पायरेसी जो होती है वो पाकिस्तान से ही होती है, तो हमको कभी भी पाकिस्तान में पिक्चर रिलीज नहीं होनी चाहिए, इंस्पाइट ऑफ कोई रीजन, चाहे कुछ भी हो। सवाल का जवाब नहीं देंगे। Ali and all three of you, can you just... Guys, we take the last question. Can you please also just have some views, say your views on it? अली, कुछ कहना चाहेंगे आप? आप कोई राय रखते हैं जो वॉर मॉन्गरिंग का दौर चल रहा है, इस बारे में कोई राय रखते हैं? नहीं, वी आर ऑल इन सॉलिडारिटी। मतलब वही है कि मैं पहले भी किसी को बोला था, डिमोनेटाइजेशन के वक्त हम सब इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं। इस समय भी अब सबके पास सॉल्यूशंस हैं। आई थिंक वी शुड ट्रस्ट द आर्मी, दे आर डूइंग देयर जॉब। नोबडी कैन नो डिस्ट्रक्शन मोर देन अ सोल्जर, एंड आई थिंक या वी हैव गॉट अ ग्रेट आर्मी। वी जस्ट हैव टू स्टैंड इन सॉलिडारिटी बिकॉज आवर कंट्री कम्स फर्स्ट। सिकंदर, आप कुछ? एक सेकंड, सिकंदर wants to speak. I just think it's easy for me to stand here and say, go and kill, because I'm not going and killing, right? So again, I'm sending the Jawans only. So as Ali rightly said, the army knows what they're going to do. They are, वो हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, ये उनका। So I mean, of course, we're all in solidarity. We're all with India, you know, and leave it to the professionals. But I'm not going to say, go, kill, go, because I'm not going there. So we are with them. We are completely with them, and we completely condone what has happened. But let them, they're going to do what they have to do, you know. सर, आप कुछ बोलना चाहें? I would like to add to this, if you don't mind, sir. मेरे पापा आर्मी में रह चुके हैं, 30 years उन्होंने सर्व किया। He retired as a colonel, he was an army officer. तो बचपन से मैंने ऐसी खबरें बहुत सुनी हैं। There were times when we would be afraid about Papa, and he was posted, and we were in a peace station. But उनके call के लिए हम लोग बहुत wait करते थे. In fact, we would be like just waiting for his call and to hear his voice and to know that he's okay. So we have seen death very closely. We have seen Papa's course mates dying on field. We have seen my friends becoming orphans in a matter of minutes. So I feel like this is a very sensitive topic. Having said that, like we said, the army knows what it's doing, and war is easy to say, easy to make films on, but it's a whole different scene out there. So I think we should keep our opinions. We should be opinionated, but at the same time, we should put all our trust in the government and the army. I think they know what they're doing. सर, आप कुछ? नहीं, मैं कम्प्लीटली जो इस बात को दोहराने से कोई मतलब नहीं है। जो श्रद्धा ने सब तीनों ने कहा है, मैं उससे बिल्कुल कम्प्लीटली इत्तेफाक रखता हूँ। फौज को पता है उन्हें क्या करना है। सर ये जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन किया गया है, इससे क्या आप सहमत हो कि ये ठीक हो रहा है या नहीं? फिलहाल तो बैन होना ही चाहिए जिस तरह की स्थिति है। जब स्थिति बेहतर हो जाएगी तो हम भी अपने बाहें फैला लेंगे। आप क्या बोलना चाहते हैं अली सर? Thank you so much, guys. Thank you so much. Yeah. Hi, Shraddha.
ट्रेलर बहुत अच्छा है आप लोगों का, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। श्रद्धा, ये आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आपकी जर्नी के बारे में, आप कैसे फिल्म मिली, कहाँ से हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मेरा फिल्म इंडस्ट्री का मेरा डेब्यू हुआ 2016 में। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम कर्नाटका, सो माय फर्स्ट फिल्म वाज कन्नड़ा। वहाँ से मैंने तमिल में किया है एक्ट, तेलुगु में किया है, मलयालम में किया है। सो आई एक्टेड इन 4 इंडस्ट्रीज़। उससे पहले आई डोंट नो इफ़ यू वांट टू नो, बट मैं लॉयर रह चुकी हूँ, सो दैट इज़ एक और एक्स्ट्रा बैकग्राउंड। बट येस, इट्स बिन 3 years एंड तीसरे साल में यहाँ पे मेरा डेब्यू हो रहा है। अली जी की और कोई फिल्में, वेब सीरीज देखी है आपने? लाइक पिछले कैसे ना देखें, बहुत ही धमाल मचाया है इन्होंने। ऑफ कोर्स, मिर्ज़ापुर जो था हर जगह था, ऑफ कोर्स देखा है मैंने। यस। तिग्मांशु जी, इतनी ट्रेलर बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो इतनी अच्छी फिल्म को लाने में इतना टाइम? जैसे मैंने पहले कहा कि हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है। शायद इस फिल्म की किस्मत थी 2019 15 मार्च को रिलीज़ होना, तो इसके लिए मैं और क्या कहूँ। मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत सालों से मैं इसको मैंने संजो के रखा था कि कभी बनाऊंगा, कोशिशें करता रहा, इस बार कामयाब हुई कोशिश। तिग्मांशु जी, ये फिल्म सिंगल स्क्रीन थिएटर के बारे में भी कुछ बात कर रही है, थोड़ा सा वो जानना चाहेंगे किस तरीके से इसमें दिखाने की कोशिश की है आपने, और किस तरीके से सिंगल थिएटर्स की जो हालत है वो कुछ उस पर भी आपने बताने की कोशिश की है? देखिए, ये फिल्म 2010 और 2013 के बीच में कही गई कहानी है, 2018 की नहीं है। वो वक्त वो था कि जब तभी प्रिंट चला करते थे। 2013 के बाद से डिजिटल कंप्लीटली हो गया हिंदुस्तान, तो उस दौर की कहानी है। सिंगल थिएटर में फिल्म देखने का जो एक मज़ा होता था, मीलों लंबी लाइनें, समोसा और सिगरेट की महक से, सिंगल थिएटर का एक महक होती थी उसकी, समोसे और सिगरेट की महक से मिली हुई, वो आज तक मेरे जहन में है, मेरे अभी दिलो दिमाग में बसी हुई है वो। और उसका एक जो मज़ा, बिग थिएटर, 1000 लोग एक साथ पिक्चर देख रहे हैं, तो मेरा ये मिलन टॉकीज मेरा ट्रिब्यूट है हिंदी सिनेमा को, जो भी सिनेमा देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, और मेरे दिल के बहुत करीब है। Was it difficult, sir? No, it wasn't difficult. I guess if the boss has said it wasn't difficult. No, it was great, yeah. Actually, you know, when the script is written so well, when the characters and when it's written seamlessly for an actor, I think any character, I think it's a lot easier to do. When you read something, it just comes out a lot easier. If it's not like that, then it becomes tough. And when I read the script, it was one of the easiest reads that I've ever had. It was great fun to do it, and I think when you're having fun, then it's just smooth. In fact, I'd like to add to this. जब भी मैं सिकंदर के साथ परफॉर्म करती थी, he was so good. उनको देख के मुझे गुस्सा आता था, तो जो naturally शायद मेरे परफॉर्मेंस में मुझे चाहिए था, and he was just like extracted the hatred out of me. Very I naturally. don't know whether I should say thank you to that or no. अली जी, पिछले दिनों में जितना प्यार आपको मिला आपकी वेब सीरीज फिल्मों से, मिलन टॉकीज से आपकी उम्मीदें और बढ़ जाती हैं, आप ऐसा हम माने? एक कलाकार की उम्मीदें हमेशा बढ़ती हैं, हर एक फिल्म जो हम करते हैं, हर फ्राइडे आने वाले फ्राइडे से। लेकिन मुझे बहुत प्यार मिला, आई एम वेरी हैप्पी। ये फिल्म जो है, ये लाइक तिग्मांशु सर ऑल्सो सेड, इनके दिल के बहुत करीब है, बहुत टाइम से ये बना रहे हैं, और ये इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ माई जर्नी एज एन एक्टर। मैं जो चीज़ें इस फिल्म पे सीखा हूँ, मतलब मैं कहीं ना सीख पाऊँ। मुझे नहीं पता इसके आगे क्या होगा। 15 मार्च को रिलीज़ हो रही है, एंड आई होप एवरीबडी वॉचेज इट। बहुत प्यार और शिद्दत से बनाई है हमने, लेकिन जो एक एक्टर के लिए जो कला होती है ना, वो मैंने सर से सीखी है, और वो कोई और पता नहीं, मैं कहीं और नहीं सीख पाता शायद। इतने अच्छे एक्टर्स के साथ, श्रद्धा के साथ तो मैंने पहली दफ़ा काम किया, बहुत मज़ा आया। मतलब मैं बल्कि देयर वर टाइम्स व्हेन आई वाज इंटिमिडेटेड आल्सो बिकॉज़ शी इज़ अ रियली गुड एक्टर। तो और वो टेबल टेनिस का मैच है यार, वो इधर से जितना अच्छा आएगा उतना अच्छा इधर से आएगा।
हमने पहले भी यही किया है और आजकल कंटेंट इज किंग, आजकल स्टोरीज आर किंग, एक्टिंग इज किंग, दैट्स व्हाट वर्क्स. So I think one of the best actors in the country directed this. So yeah, thank you. Shraddha? अरे श्रद्धा हाय पूछ लीजिए आपका नेक्स्ट. Shraddha, your film Vikram Vedha was very popular all over India, not just in South. And now there have been talks that it's going to be remade in Bollywood as well. Yes. Do you want, number one, how do you feel about that? And there have been a lot of speculations as to who will be there. Even Shah Rukh sir's name has been cropped up into that. How do you feel about the film being remade? And do you want to star in it, or you would feel that there's somebody else that can take your place in that? My answer is obviously yes. I want to star in it. But how do I feel about it? I feel great that it got so much attention. It was a Tamil film. It was a big Tamil film with big names. But to reach a national level, and it got selected for so many film festivals. And abhi, I think it's dubbed in Hindi. It's available on YouTube. And all that is happening. So feels nice. Feels like slowly you have a bigger audience. The films that you're doing, even though they're regional, the audience is actually national. The answer to your second question, like I said, is yes. I don't know who's doing it, but I'd like to play Priya's part again.